But whenever we talk about the hope in Jesus Christ, that Dr. Koshi Matthew talked about the coming of the Lord for the church, and now we are going to talk about the coming of the Lord for the nation of Israel and to set up the kingdom. You know, especially the young people may ask, you know, like, is it going to happen? Is it going to materialize or fulfilled? और जैसे कि डॉक्टर कोशी मैथ्यू ने हमारी धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह का उसकी कलीसिया के लिए आना के विषय में कहा था, और मैं भी जब इन बातों पर विचार करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का इजराइल के लिए आना, अपने राज्य को स्थापित करना, तो युवा जो है वो अक्सर पूछते हैं कि क्या ये वास्तव में ऐसा होने वाला है? We know that 1/3 of the Bible consists of biblical prophecies. हम जानते हैं कि बाइबल का 1/3 भाग जो है वो भविष्यवाणियों से भरा हुआ है. And this feature we can see only in the Bible, because God is the God of past, present and future. और इन बातों को हम लोग सिर्फ बाइबल में देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का परमेश्वर है. There are 2 types of prophecies. 2 प्रकार की भविष्यवाणियां पाई जाती हैं. And the first one is prophets prophesied that is fulfilled in the history. और एक प्रकार की भविष्यवाणी वो है कि जब भविष्यवक्ता ने उस भविष्यवाणी को की, तो वो भविष्यवाणी इतिहास में पूरी हो चुकी है. It was literally, grammatically and linguistically it was fulfilled. और इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये शब्दशः और भाषाई नियम के अनुसार जो कहा गया है, और पूरी रीति से ये ऐसी भविष्यवाणियों की पूर्णता हो चुकी है. Several of those fulfillments were recorded in the Bible itself. बहुत सारी भविष्यवाणियां जो हैं उनकी पूर्णता बाइबल समय काल में हुई और वो बाइबल में ही लिखी गई हैं. Say for example, the first coming of our Lord and Savior Jesus Christ 2000 years before. उदाहरण के लिए 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन जब इस धरती पर हुआ. However, you know, several prophecies are not recorded. It did not become part of the Bible. There is no inspiration, but those prophecies were literally fulfilled in the annals of history. That all became history. और बहुत सारी ऐसे भविष्यवाणियां रही हैं जो वास्तव में बाइबल के भाग नहीं बनी, परंतु उन्हें भी हम शब्द सह इतिहास में, बाइबल के इतिहास में पूरी होते हुए हम देख सकते हैं. नहीं, बाइबल के इतिहास में नहीं. In the secular history, it is recorded. और ये जो है वो बाइबल के बाहर की बातें हैं जो लिखी गई हैं, परंतु वो बाइबल में नहीं. For example, the prophecy about Alexander the Great. उदाहरण के लिए सिकंदर महान के विषय में भविष्यवाणी. We read in the initial part of chapter 11 of Daniel. और दानियल के 11वें अध्याय के आरंभिक भाग में हम पढ़ते हैं. But we won't see its fulfillment in the Bible. It is written in the Bible. हम उसके पूर्णता को हम यहाँ पर बाइबल में नहीं देखते हैं, ये बाइबल में लिखी गई है. But those prophecies literally fulfilled, and it is recorded in the Greek history, Greek Hellenistic history. परंतु हम देखते हैं कि इस भविष्यवाणी की पूर्णता जो है वो यूनान के इतिहास में लिखा गया है. Now I want the young people to think over. और मैं चाहता हूं कि युवा लोग जो हैं वो इस विषय पर विचार करें. If you are skeptic about the fulfillment of those prophecies, in its coming prophecies about the coming of Jesus Christ and related incidents or events, और प्रभु यीशु मसीह के संबंध में, उसके दोबारा आगमन और इजराइल के संबंध में जो भविष्यवाणियां हैं, यदि उसके में आपको किसी भी प्रकार का संदेह है, शंका है, if majority of the prophecies were fulfilled and it became part of the history, surely, certainly the prophecies for the future will be fulfilled literally, grammatically, rhetorically, linguistically. और यदि बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं वो इतिहास में हम इस प्रकार पूर्ण होते हुए देख रहे हैं शब्द सा, तो निश्चित रूप से भविष्य में जो भविष्यवाणियां भविष्य के विषय में की गई हैं, वे भी शब्द सा, भाषाई संबंधी और व्याकरण संबंधी और जिस तरीके से भी कही गई हैं, सारी तरीके से वो पूरी होंगी. So today in this session I am going to focus some, of the, not everything,
like the prophecies concerning in the program of God fulfilled in the history, recorded in the Bible as well as it is recorded in the secular history. तो कुछ ऐसे भविष्यवाणियों के विषय में मैं इस सत्र में बात करना चाहूंगा जिनकी पूर्णता जो है वो परमेश्वर के वचन में और साथ ही साथ इस विश्व इतिहास के साहित्य में भी जो लिखी गई हैं उनके विषय में विचार करेंगे. But in the afternoon session, I am going to concentrate on the prophecy concerning the program, what is next to happen, and finally we'll come to a conclusion that yes, they are going to fulfill in the history, including my going up to heaven with the Lord. और उसके बाद अंतिम सत्र में हम लोग भविष्य के विषय में जो भविष्यवाणियां हैं उनके पूर्णता के विषय में भी हम विचार करेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये भविष्यवाणियां भी जो हैं वो भविष्य में पूरी होने वाली हैं और हमारा प्रभु मेरे लिए और अपने योजना के अनुसार इजराइल के लिए वो आने वाला है. Anyway, thank you very much for your passionate listening. और आप जो ध्यान पूर्वक इन बातों को सुन रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. You must have heard about a great philosopher, Blaise Pascal. और ब्लेस पास्कल जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उनके विषय में आप सुने होंगे. He was a 17th century French philosopher and mathematician. और 17वीं शताब्दी के वो एक फ्रांसीसी फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे और वो साथ में साथ एक गणितज्ञ भी थे. Once Louis XIV, the king of France, posed a very important question, very vital question to him. एक बार लुइस नाम के जो फ्रांस के राजा थे, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इन दार्शनिक से पूछा. Blaise, can you prove that there is something called supernatural or God? उन्होंने कहा कि ब्लेस, क्या आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हो कि परमेश्वर नाम की एक अप्राकृतिक अस्वाभाविक कोई बात है? Now this Blaise, he was not a proper believer, but without any hesitation he answered, "Oh, your majesty, the Jews, your majesty, the Jews only are the mark that there is a God, there is God and there is a supernatural." और ब्लेस जो कि एक बहुत अच्छे विश्वासी नहीं थे, परंतु उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के राजा को कहा कि हाँ महाशय, हाँ महाराजा, महाराजाधिराज, यहूदी हैं, उनका अस्तित्व है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है और इस प्रकार से एक परम शक्ति का अस्तित्व निश्चित रूप से पाया जाता है. So many secular historians and world leaders, emperors, they all said about similar statements in the history. और इतिहास में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक रहे हैं, राजा महाराजा सम्राट रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने इस प्रकार की बातों को भी कहा है. Even their enemies, recently the king of Saudi Arabia said, "Oh, they have a divine right to occupy the Holy Land." और यहाँ तक कि अरब के कुछ लोगों से भी इस बात को हमको सुनने को मिलता है कि एक ईश्वर है जिसके कारण से उस पवित्र देश को इन लोगों ने अपने कब्जे में किया है. You know why? इसका कारण आप जानते हैं? Because all other nations in the world, whether past or present or future, they have had a physical material history, but the nation of Israel has had a metaphysical history and future. हम देखते हैं कि सारे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, उन लोगों के पास ये सांसारिक एक इतिहास है, परंतु इजरायली लोग जो हैं उनके पास में एक इस संसार से बढ़कर, इस संसार से परे एक वास्तविक आत्मिक राज्य है. Because they are a covenant people of the living God who we serve. और क्योंकि वे लोग उस परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के वाचाई लोग हैं, प्रजा हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. They are a covenanted people. और वे लोग वाचाई प्रजा हैं उस परमेश्वर के. We read in BC 1400, God made another covenant through Moses to the nation of Israel.
1400 ईसा पूर्व में परमेश्वर ने इजराइल के लिए मूसा के द्वारा और एक वाचा को स्थापित किया। That promise or covenant was within the scope of Abrahamic covenant. और ये भी जो वाचा है वो अब्राहमी वाचा के सीमा के ही अंतर्गत दी गई एक वाचा है। There we read in Exodus chapter 19 verse 5 that, if you will diligently listen to me and keep my covenant, then you will be my special possession out of all nations. For the earth is mine, and you will be to me a kingdom of priests and a holy nation. निर्गमन 19 के 5 में हम पढ़ते हैं, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। Now today we are the holy nation, spiritual holy nation and kingdom of priests. As Peter, hired, he borrowed these words from Moses. और आज हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा, पवित्र याजक हैं और इस भाग से प्रेरित पत्रस जो है वो मसीहियों को, विश्वासियों को आत्मिक पवित्र प्रजा और याजक के रूप में बताता है। Unless the unconditional covenant God made with Abraham, the covenant he made through Moses to the nation of Israel was conditional. That is the difference. यद्यपि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की अब्राहम के साथ जो वाचा थी वो निशर्त वाचा थी, उसमें कोई कंडीशन नहीं था, परंतु मूसा के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी उसमें हम शर्त को देखते हैं। Now we see the usage if you will. Thus the covenant was bilateral. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे, इसका मतलब है कि इस वाचा में दो पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। Now God's covenant to the nation of Israel through Abraham or David, or the land covenant, or the dynasty covenant will not change today or tomorrow. It's going to happen. और यहाँ पर परमेश्वर की जो वाचा थी अब्राहम के साथ और दाऊद के साथ, जो कि भूमि के संबंध में और राजगद्दी या सिंहासन के संबंध में वो वहां पर आज या कल कभी पूरी हो रही है, ऐसा वहां पर नहीं हम देखते। But why this promise is conditional? That if you will, it is bilateral. Why it is bilateral or conditional? तो वहां पर जो अब्राहमी या दाऊदी वाचा है उसमें हम Moses, the covenant made by Moses through Moses. तो एक प्रकार की वाचा जो पहले हमने देखी थी उसमें कोई शर्त नहीं है, निशर्त है, परंतु मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो वाचा यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक में दी है वहां पर हम शर्त को देखते हैं। The reason is that if you are not going according to the laws given, you will not be able to experience the blessings of the covenant, whereas you are going to experience a lot of reversal blessings. That is the part of the covenant with Moses. और मूसा के साथ जो यहाँ पर वाचा बांधी गई है वहां पर हम इस शर्त को देख रहे हैं कि आज्ञाकारिता के द्वारा से जो आशीषें हैं वो तुम पाओगे, परंतु यदि तुम अनाज्ञाकारी होते हो तो उसके बदले में श्राप को तुम्हें भोगना पड़ेगा। Even in the New Testament, we believers, this is actually same principles the Lord will apply. और हम नए नियम के विश्वासियों के लिए भी यही सिद्धांत प्रभु जो है वो लागू करने वाले हैं। Our salvation is unconditional. हमारा उद्धार जो है वो निशर्त है। And our future redemption is unconditional. और हमारा जो भविष्य में होने वाला छुटकारा है वो भी निशर्त है, उसमें कोई शर्त नहीं है। Justification by faith is unconditional. विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना ये बिना किसी शर्त के है। Sanctification is not conditional. Sanctification is not conditional. लेकिन हम देखते हैं कि जो पवित्रीकरण है जिसमें कि हमारा भाग है ना, वो जो है वो शर्त नहीं है उसमें।
peaceful Christian life, is not conditional. और जो शांति का जो जीवन है वो भी शर्त के अनुसार नहीं है। But these things, I am talking about the blessings that is in the God's promise. That is, if you want to experience, the real blessings, the spiritual blessings and relationship, within that unconditional promises, we need to be obedient to God. We need to obey the word of God. We need to maintain a very good relationship with God. लेकिन वो उस निसत वाचा के अंतर्गत जो आशीषें हैं मेरे प्रियो, उन आशीषों को पाने के लिए हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना है, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना है। तब हमारी आज्ञाकारिता के आधार पर उन आशीषों को हम अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। And we read, about this promise further amplified in Deuteronomy chapter 28. और इन्हीं प्रतिज्ञाओं को आगे जो है और विस्तृत रूप से व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय में हम देख सकते हैं। Through Moses, God stipulates the conditions of their covenant blessings as well as reason for their curses of reversal blessings. मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को शर्त के अनुसार आशीषों और श्राप के विषय में स्पष्ट रूप से बताया। Deuteronomy chapter 28 can be divided into two portions. व्यवस्था विवरण उसका into portion, two segments can be divided into two parts. व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय जो है उसको हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1 to 3 we read the conditions of covenant blessings and prosperity they will enjoy. और 1 से लेकर 3 पद तक हम लोग उस वाचाई आशीष को देख सकते हैं और उनके आज्ञाकारिता के कारण से जिन आशीषों को वे लोग अपने जीवन में अनुभव करेंगे। In 14 that is concluded, that part is concluded. और 14 पद में वो भाग जो है वो समाप्त होता है। But you must not turn away from all the commandments I am giving you today to either the right or left, nor pursue other gods and worship them. 14 पद को हम पढ़ते हैं, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। Read 1 to 13, you will see abundance of blessings offered to the nation of Israel. 1 से लेकर 13 तक हम लोग इजराइल राष्ट्र के लिए परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को देख सकते हैं। When 15 to 69, we read about the curses and reversal blessings if they are not obeying to the laws of God which is given through Moses. परंतु 15 से लेकर यदि हम लोग 69 पद तक हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोग उन श्रापों को देख सकते हैं जो इजराइल की अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप उनको भुगतने पड़ेंगे। I was blessed to have the opportunity of going through the whole history of Jews recorded in the Bible as well as in the secular history. और यहूदियों के संबंध में जो भी बातें हुई हैं उन ऐतिहासिक बातों को जो बाइबल में मिलती हैं और बाकी बाइबल के बाहर की साहित्य में मिलती हैं, उन सारी बातों का अध्ययन करने का मुझे बहुत ही अच्छा एक अवसर मिलने पाया। I read the whole modern history recorded in their government, archives department. I had the opportunity to read those. और उनके जो सरकारी जो कागजात हैं उनमें इजराइल के जो इतिहास हैं लिखे गए हैं, उन सारे बातों को पढ़ने का मुझे अवसर मिला। 2018 I went down to Israel. Otherwise, I used to go around Israel. I went to Lebanon, I went to Cyprus, I went to Jordan, but I could not go in because I was living in an Arab country. लेबनान, साइप्रस, जॉर्डन, इन देशों में मैं 2018 के पहले जाता था जो कि इजराइल के चारों तरफ है, परंतु 2018 में मुझको इजराइल में जाने का मौका मिला। उसका कारण ये था कि मैं अरब देशों में मैं निवास कर रहा था। From there, in the temple library, I picked up a book called A Crash Course in Jewish History by a Jewish writer, Jewish historian, professor of history, Ken Spiro.
और कैन स्पैरो नाम के एक यहूदी इतिहासकार थे। उन्होंने एक कोर्स एक पाठ्यक्रम की एक किताब लिखी थी, जिसको कि क्रैश कोर्स थोड़े समय में पढ़ाया जाता है। You know, और he- उस किताब को मैंने वहां पर जो टेम्पल लाइब्रेरी है वहां से निकालकर मैंने पढ़ा। he did not give me any discount. I am a good bargainer. You know, if I come to Delhi, you know that underground market, you know, I go there and bargain lot of things. I bargain. He did not reduce. He's a core Jew. Finally, you know, with a smile, I called him, "You are a Shylock of, you know, William Shakespeare drama." और मैं बार्गेन करने में बहुत ही समय देता हूं जब मैं दिल्ली भी आता हूं तो। लेकिन इस किताब के लिए भी जब मैंने बार्गेन किया तो मुझको किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला। और ये समझ में आया कि विलियम शेक्सपियर से मिलती जुलती ये बातें या ये परिस्थिति है। Yeah, means there is a character called Shylock who was a, you know, who was a very, very, you know, unbargainable person. You know, he was a core businessman. Such a character, you know, you read, you know, there in लोग drama. में जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, एक ऐसा चरित्र है जिससे कि बार्गेन नहीं किया जा सकता। वो उसी प्रकार का एक व्यक्ति। When I was reading all this history, I could see that it has been Deuteronomy chapter 28 has been literally fulfilled throughout the history, including the modern history of Israel. और जब उस उन इतिहास की बातों को मैं पढ़ रहा था तो मुझको समझ में आया कि व्यवस्था विवरण में जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं श्राप के विषय में, वो सारी बातें शब्दशः इजरायलियों के इतिहास में पूरी हुई उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण से। Only few examples to highlight to establish you, especially the young people, that whatever the Lord promised, whatever the Lord, you know, prophesied, it is going to be fulfilled literally. और इसलिए मैं युवा वर्ग को और भी इस बात को सुनिश्चित करवाना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जो भी अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में कहा है, चाहे वो आज्ञाकारिता के द्वारा आशीष या अनाज्ञाकारिता के द्वारा श्राप, ये सारी बातें पूरी हुई हैं और आने वाले दिनों में भी शब्दशः वो बातें पूरी होंगी जैसा परमेश्वर ने कहा है। In 28:1, if they are obedient to the word of God, we read that the Lord your God will elevate you above all the nations of the earth. 28:1 में हम लोग देखते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। Abraham was elevated as the top person during his days. और अब्राहम को परमेश्वर ने उसके समय में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। So as his descendants throughout the history, whether they were in their own land or during their exiles or diaspora. और यद्यपि उसके जो वंशज थे इजरायली लोग, वे लोग अपने ही देश में कई बार उस प्रकार से नहीं रह पाए, या वे लोग तितर बितर होकर रहने वाले लोगों के पहचान के रूप में रहे। Comparing to all the race in this world, including Indians or Chinese, Israel produced the best engineers, doctors, agriculturists, technologists, statesmen, and even this is true even in this modern time. और हम देखते हैं कि पूरे इतिहास में इजराइल देश ने पूरे विश्व के देशों की अपेक्षा बहुत ही अच्छे लेखकों को दिया है, और साइंटिस्ट को दिया है, वैज्ञानिकों को दिया है, चिकित्सकों को दिया है, और सभी क्षेत्र में उसने बहुत ही अच्छे लोगों को प्रदान किया है। There are 171 Nobel Prize winners from this small nation. और इस छोटे से देश से अभी तक हम देख सकते हैं करीब 171 नोबेल प्राइज विजेता लोग निकले हैं। Take any modern inventions, there is a Jewish inventor behind it. यदि आधुनिक किसी भी प्रकार की खोज को हम लेते हैं, आविष्कार को लेते हैं, तो उसके पीछे यहूदियों के हाथ को हम जरूर देख सकते हैं। You know Albert Einstein, who invented E is equal to MC squared, that really changed the face of the science, the history of the science and technology.
तो E=mc² का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, उसकी खोज भी जो है वो पैलेस्टीन के उन लोगों के द्वारा से आई है, जिसने कि मनुष्य के इतिहास को पूरी रीति से बदल दिया है। He was a Jew. और हम देखते हैं कि वो एक यहूदी था। Ordinary things we use on a daily basis: ball pen, Barbie dolls, teddy bear, TV remote, video games, camera, phone. It's all contributions from the Israeli inventors. और जितने भी आधुनिक आविष्कार हम लोग देखते हैं, चाहे वो कैमरा फोन हो, चाहे बार्बी डॉल हो, खिलौने हो, या आविष्कार हो, किसी भी प्रकार की मशीन हो, सारी बातों के पीछे में यहूदियों का हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। Major inventions like laser, pacemakers. Yeah. अभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कारों में हम लोग देख सकते हैं पेस मेकर को, लेसर टेक्नोलॉजी जो है, लेसर और पेस मेकर, ऐसी चीजों को, एंड जनरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिकल जो इंजीनियरिंग है। हिंदी में है क्या कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग? ओके, नो प्रॉब्लम। स्टेनलेस स्टील, ओके, जो स्टेनलेस स्टील है, न्यूक्लियर वेपन्स, और जो परमाणु शस्त्र हैं, वैक्सीन्स, और जो टीके लगते हैं, फॉर कॉलरा एंड प्लेग दे इन्वेंटेड, और जो प्लेग जैसी बीमारियों के लिए, महामारी बीमारियों के लिए जो टीके बनाए जाते हैं। Maybe it is in their brain, the vaccine for COVID-2. और हो सकता है कि कोविड के लिए भी जो टीका बनना है वो उनके दिमाग में होगा। Yes, they are the brain of the world and elevated people above all nations of the earth. Even today in their unbelief, they are the top people in the middle, in the middle of the whole world, in the middle of the whole earth. सारे विश्व, सारी पृथ्वी के बीच में ये वैसे लोग हैं जो अभी भी अपनी अनाज्ञाकारिता के बावजूद भी वे लोग सारी संसार के लोगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट स्थान को वे लोग बनाए हुए हैं। Now, when we are reading verse 28:7, I'm talking about Deuteronomy chapter 20. Only few examples I'm showing. व्यवस्था विवरण उसके 28 के 7वें पद को जब हम देखेंगे, पढ़ दीजिए। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। Now look, what is the promise of God? देखिए यहाँ पर क्या है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। This has been their military history or war history. और ये जो है वो उनके सैनिक इतिहास या युद्ध इतिहास के संबंध में है। Even those wars recorded in the Bible, like Joshua's time, Judges' time, Samuel, Kings and all. यद्यपि उनके युद्ध को हम लोग यहोशू के समय में और न्यायियों के समय में, शमूएल के समय में लिखे गए बहुत देख सकते हैं। But take the modern wars. परंतु यदि हम आधुनिक युद्ध को, आधुनिक लड़ाइयों को लें, Jewish manpower, brain and inventions were instrumental in the winning of First World War by Central Powers. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध में भी वहां पर जो इस्तेमाल किए गए, जो दिमाग वहां पर चला है और जिन अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें हम यहूदियों के उत्कृष्टता को हम लोग देख सकते हैं। So as in the Second World War by the Allies, they also won the war because of the inventions made, war equipments made by and the chemicals made by the Israeli scientists. दूसरे विश्व युद्ध में भी हम देख सकते हैं कि जितने साथी देश जो हैं इस युद्ध में जिन्होंने विजय प्राप्त की थी, उन लोगों ने जो अस्त्र हैं, जो केमिकल वेपन्स हैं और दूसरे अस्त्र शस्त्र हैं, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो यहूदी जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा से आविष्कार किए गए थे। It is worthwhile to note that one of the byproducts of these two great wars was the rebirth of Israel in the Middle East. और बहुत ही अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि इन दोनों विश्व युद्ध के कारण से मध्य पूर्व में जो इजराइल के स्थापना और पुनर्स्थापना का एक कारण बनने पाया। Verse 28:7
28:7, chapter 28, verse 7, as we read, that was literally fulfilled all other wars I mentioned in the past class, like 1948 war, 56 war. You know, they were alone. They were only few people. 5 Arab countries, major Arab countries, including the country where I was. They wanted to defeat, Israel, but God won the war. God helped them to win the war. 1948 में, 1961 में और जितने भी बड़े बड़े युद्ध इजराइल के विरुद्ध में लड़े गए, और विशेष रूप से जब 5 बड़े बड़े अरब देश एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, वहां पर भी हम लोग इजराइल के अद्भुत रीति से विजय को देखते हैं, जिसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। They have an intelligence department called Mossad. Recently, I picked up, one book, the stories of Mossad from, the railway station in Delhi. I was going to Alwar last year. I read the whole book, then and there, whenever I get a book and I finish it off within few hours. And it says that they are the brain of the world. They are giving lot of, intelligence support to other nations in the world. और मोसाद नाम एक लेखक है जो युद्ध से संबंधित बहुत सारी बातों को लिखते हैं। एक किताब जो है मुझको दिल्ली में वो मिली पिछले साल जब मैं अलवर की ओर जा रहा था, तो उसने इन सारी बातों को लेकर जो एक समापन दिया है वो ये है कि इन सारे लड़ाइयों में, युद्ध में विजय के कारण, जो कारण है उसके पीछे यहूदी जो वैज्ञानिक है उनका बहुत बड़ा हाथ है। They give information, intelligence information on terrorism, invasions and all these things. Especially Mossad only gave the information to India that in the Kargil, those people are, creeping in. और देखते हैं कि यहूदी जो वैज्ञानिक हैं, उन लोग जो सूचना प्रदान करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सारे युद्धों को जीतने के लिए। और मोसाद के द्वारा से ही कारगिल में जो लड़ाई लड़ी हुआ था उसकी सूचना जो है वो उसके द्वारा से हमारे भारतीय सेना को दी गई थी। Now one more, examples on their blessings which God promised. Even today they are experiencing that in their unbelief to God. और परमेश्वर के द्वारा से प्रतिज्ञा की गई आशीषों के बारे में हम और एक बात को देख सकते हैं जो वर्तमान में भी यहूदी लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। Read verse 12 of 28, Deuteronomy chapter 28. हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय का 12वां पद हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। You will lend to many nations, but you will not borrow from any. तू बहुत सी जातियों को, बहुत से राष्ट्रों को उधार तो देगा, परंतु किसी भी देश से तुझे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। This is even today happening, and before in the history also. Even when they were in their exile, in diaspora, in different places, they were living in about 130 countries. This has literally happened in their history. और ये यहूदी लोग न सिर्फ वर्तमान में परंतु अपने इतिहास में भी जब वे लोग तितर बितर होकर करीब 130 राष्ट्रों में रह रहे थे, उस समय में भी परमेश्वर की जो ये प्रतिज्ञा यहाँ पर 12वें पद में दी गई है, ये शब्द सह पूरी हुई है। Presently, behind every successful financial institutions of the world, especially in America, there is a Jew or a Jewish institution. और सारे संसार में जहां पर भी उस देश के लोगों ने जो फाइनेंशियल संगठन इंस्टीट्यूशन तैयार किया है, अर्थ संबंधी, वित्त संबंधी, उसके पीछे में जो यहूदी संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ रहा है। Several major investment banks belong to the Jewish people. और जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक हैं वो उनमें से अधिकांश जो बड़े इस प्रकार के बैंक हैं या इंस्टीट्यूशन है वो यहूदी लोगों के हैं। When I was 23 years old, after my degree and my other studies, my management studies, I obtained a job in Bahrain
I reached in Bahrain in 1982. और 1982 में मेरे अध्ययन के बाद जो है मैं बहरीन में पहुंचा। मैंने वहां पर नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया। I went, the first salary, I went down to a finance company to send money back to India, to my parents and others. और जो मेरी पहली तनख्वाह थी उसको मैं अपने माता पिता लोगों को जो भारत में थे भेजने के लिए मैं वहां पर एक बैंक में गया। Throughout this 36 years, I have been sending money through one company called Bahrain Finance Company, which is very, very prominent in Bahrain as well as other Gulf countries. And that was a Jewish company, a Bahraini Jew, a Jew with the Bahraini passport is, owner of that company. और पिछले 30 सालों से मैं जो इस बैंक के द्वारा से मैंने पैसों को भेजा है, ये जो बैंक है वो बहरीन में रहने वाला एक यहूदी है जो उसका मालिक है। और उस बैंक को मैंने इस्तेमाल किया जो एक सबसे बड़े बैंक के रूप में जाना जाता है। And then I learned from my boss that the king of Bahrain, they lend money from Dawood. His name is Dawood, and this Jewish people. और उसके बाद अपने बॉस के द्वारा मुझे पता चला कि बहरीन का जो किंग है वो भी इस बैंक का मालिक जिसका नाम दाऊद है, जो एक यहूदी व्यक्ति है, उससे उधार लेता है। In my memory, I read somewhere, I don't know whether it's a reference, I had to find out, but it says that Columbus discovered America, but the Jews built America. और मुझे याद आता है कि कहीं पर ये कहा गया या कहीं पर मैंने पढ़ा है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, परंतु उस अमेरिका को यहूदियों ने निर्माण किया। And Jewish companies and investors played a major role in the American economy. और अमेरिका का जो वित्त मंत्रालय रहा है वहां पर यहूदी लोगों का एक बहुत बड़ा भाग उसके उत्थान में रहा है। My favorite subject, sociology and anthropology confirms that the Jews are the top people among all races, intellectually, culturally, sociologically, scientifically, technology-wise, and economically. और मेरी पढ़ाई जो समाज शास्त्र में और मानव शास्त्र में हुई है उससे मैं कह सकता हूं कि यहूदी लोग सारे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो, कि हर क्षेत्र में वे लोग हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, हमेशा ऊपर रहे हैं। Top billionaires are from the Jewish nation, including Moses Montefiore. Yeah. मोजेस मोंटेफोर उसमें है जो 10 बिलियनियर जो अरबपति खरबपति लोग रहते हैं, 10 लोगों के सूची में 4 जो हैं वो यहूदी लोग हैं। And in 1900, Edmund de Rothschild, who was owing most part of England, he was a billionaire at that time, and he financially sponsored, lot of money for the establishment of the nation of Israel in the Middle East. और 1900 में भी हम लोग देखते हैं कि जब अमेरिका में सबसे धनी लोगों अमेरिका नहीं, इंग्लैंड में सबसे धनी लोगों में एक यहूदी था जो अरबपति खरबपति था, जिसने के इजराइल के पुनर्स्थापना के लिए, उसके उत्थान के लिए बहुत सारे वित्त का, बहुत सारे पैसों का उसने प्रबंध किया और वहां पर भेजा। Read Deuteronomy chapter 28:13. यदि हम लोग व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shall be above only, and thou shalt not be beneath. और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। Some Pentecostal people, I am sorry about them, they are our brothers, they take this verse to preach prosperity gospel, but this is nothing to do with the believers. This was a physical blessings of Israel.
और कुछ पेंटिकॉस्टल प्रचारक भाई लोग हैं, यद्यपि वो विश्वास में हमारे भाई लोग हैं, वे लोग इस पद को लेकर जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, इस मसीही जीवन में हमको परमेश्वर हर प्रकार के भौतिक और सांसारिक आशीषें देंगे, जो प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है वो विश्वासियों के संबंध में नहीं है, परंतु ये इज़राइल को और अब्राहम के शारीरिक वंशज को दी गई प्रतिज्ञा है, जो वे लोग भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। Until now, I have been sharing with you some of the material, what the Lord, promise the blessings if they obey Him, and those promises were throughout their nation wherever they went. और अभी तक मैं इन बातों को बता रहा हूं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को जिन आशीषों के विषय में कहा है, चाहे वे लोग कहीं पर भी रहें, वो उनकी आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। और ये अधिकांश आशीषें जो हैं वो उनके भौतिक या इन सांसारिक आशीषों के विषय में बताई गई हैं। But God imposed certain reversal blessing curses if they will depart from the word of God and they will worship idols, leaving the living God. परंतु यदि वे लोग परमेश्वर को छोड़कर और अन्य देवी देवताओं के पीछे चले जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो कई प्रकार के श्रापों को भी उनके जीवन में झेलना पड़ेगा। इस बात को परमेश्वर ने स्पष्ट बताया है। Chapter 28, 15 to 69, as I said, we read about that. और व्यवस्था विवरण के उसके 28 अध्याय के 15 से आगे पूरा 69 तक हम इस बात को देख सकते हैं। I will highlight only few examples relating with the history. और इतिहास के संबंध में मैं सिर्फ थोड़ी सी ही बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। 28-25, can you read, brother? उसका 28वां अध्याय का 25वां पद हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। Look, the reversal blessings of verse 7. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो उल्टा उनके ऊपर में श्राप आता है। उनके 7वें पद में हम लोग आशीष को देखते हैं, उसका reversal blessings. हाँ, जो आज्ञाकारिता के कारण से जो आशीष उनको मिलती है, इस बात को हम लोग देखते हैं। Now, whatever the Lord promised the blessings in verse 7, it is reversed in this verse. हाँ, 7वें पद में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आशीष के रूप में जो बातें 7वें पद में कही थी, अभी हम यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा होते हुए देख रहे हैं। We read in 64, verse 64. और यदि हम लोग 64वें पद को पढ़ेंगे, The Lord will scatter you among all nations from one end of the earth to the other. और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। और बाकी भी पढ़ दीजिए, including 65. और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। Exile, dispersions, slavery, expulsions, were frequent as, in their history as literal fulfillment of these verses. और इन पदों के शब्दशः पूर्णता में हम लोग इन इजरायलियों के इतिहास में उन लोगों का बंधुआई में जाना, तितर बितर होना, उनका पराजय और इन सारी बातों को हम लोग देख सकते हैं। The last session I mentioned about what happened to them in BC 722. और पिछले सत्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि 722 ईसा पूर्व में उन लोगों के साथ क्या हुआ था। इन बातों को हम देखे थे। The northern 10 nations were sacked by the Assyrians or the Syria. और इजराइल के जो 10 गोत्र थे, उत्तरी राष्ट्र, वो सीरिया के द्वारा से बंधुआई में ले जाए गए। The second was in BC 586, how Babylonians or Iraq, Saddam Hussein, his great grandfathers, sacked them. और 586 ईसा पूर्व में बाबुल के साम्राज्य, जो हम जहां के सद्दाम हुसैन आते हैं, सद्दाम हुसैन के जो
पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने 586 ईसा पूर्व में दक्षिण राष्ट्र जो यहूदा या यहूदिया था उसको अपने कब्जे में ले लिया, बंधुआई में ले लिया। These two dispersions are recorded in the biblical history. और ये जो दो प्रकार के बंधुआई में ले जाने की घटनाएं हैं वो बाइबल के इतिहास में लिखी गई हैं। But when we come to the new, but of course, these people, the southern kingdom came back, through Ezra and Zerubbabel, and they could not, go back to their glorious period of reign by Solomon and all the same. They were later on were ruled by the sense Medo Persians as well as Greece as well as Romans. और अब देखते हैं कि पारसी साम्राज्य के समय में यरूबाबेल और इजरा के नेतृत्व में वे लोग वापस आए और उन्होंने मंदिर का, यरूशलेम शहर का पुनर्निर्माण किया, परंतु वो उतना भव्य नहीं था जो सुलेमान के समय में था। और उसके बाद इन इजरायलियों के ऊपर में हम लोग यूनानी और रोमी साम्राज्य को भी अपने अधिकार को रखते हुए देखते हैं। But the third scattering was prophesied by Christ in his Olivet discourse. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने जैतून के पहाड़ पर जो अपने चेलों को उन्होंने बताया था, हम देखते हैं कि उसके अनुसार फिर से ये यहूदी लोग जो हैं वे लोग पूरे विश्व में तितर बितर हो गए। You know what is the greatest mistake the Jewish nation did throughout in their history? और क्या आप जानना चाहते हैं कि पूरे इतिहास में यहूदी लोगों ने क्या जो है सबसे बड़ी गलती की थी? That was the crucifying of our Lord and Savior Jesus Christ. उनकी सबसे बड़ी गलती थी यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, उसको उन्होंने क्रूस पर लटका कर मार डाला। Prior to his death or crucifixion, crucifixion was on Friday, but on Wednesday evening, he made this famous, very, very renowned Olivet discourse, which was purely eschatological for the nation of Israel. और प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के पहले यदि वो गुरुवार का दिन माना जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर जो संभाषण दिया वो बहुत ही एक स्पष्ट भविष्य के घटनाओं का एक बहुत ही अच्छा चित्रण हम वहां पर देख सकते हैं। The fulfillment is not recorded in the annals of the Bible, the pages of the Bible. और उसकी पूर्णता जो है वो बाइबल के पृष्ठों में लिखी नहीं गई है। But there was a great Jewish historian whom I love. I read all his books. He wrote two books, The Antiquities of the Jews and the Wars of the Jews. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहूदी इतिहासकार है जिसको कि मैं बहुत ही पसंद करता हूं, उनके लेखों को। उन्होंने दो किताब जो है वो यहूदियों के इतिहास के संबंध में लिखी है। In the Olivet Discourse in Luke chapter 21, the Lord said, yes, you will be invaded by the nation, by the Romans, and you will be scattered away throughout the world. That's what Jesus said. लुका 21 में यदि हम लोग देखेंगे कि जैतून के पर्वत पर प्रभु जब बता रहे हैं तो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यरूशलेम जो है वो शत्रुओं के द्वारा, रोमियों के द्वारा से घेर लिया जाएगा और तुम लोग सारे संसार में तितर बितर हो जाओगे। You read chapter 5, actually part 5 and chapter 5, 6 and all of Wars of the Jews. Without shedding tears, you cannot read those historiographic materials. और वो उन किताबों में यदि हम लोग 5वें अध्याय में उसके 5वें 6वें खंड में हम लोग जाएंगे तो जिस प्रकार से इस युद्ध का उल्लेख किया गया है उसको हम लोग अपने बिना आंसू बहाए हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। They were dispersed all over the world. और उस समय में यहूदी जो हैं वो सारे संसार में फैल गए, तितर बितर होकर रहने लगे। 1100 Jews were killed by the Romans in that civil war. और उस युद्ध में करीब 1100 यहूदी जो थे वो रोमियों के द्वारा से मार डाले गए। It was in AD 70. और ये घटना जो है वो 70 ईस्वी सन में हुई। Whatever the Lord prophesied in Luke chapter 21, 1-7 where literally happened. और लुका 21 के 1 से 7 में प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात की भविष्यवाणी की थी वो बातें शब्दशः पूरी हुई हैं।
Whatever the curses or reversal blessings God pronounced there in Deuteronomy chapter 28, those will literally happen in history. और व्यवस्था विवरण उसके 28 में भी परमेश्वर के द्वारा से कही गई आशीषें और अनाज्ञाकारिता के द्वारा से जो श्राप हैं वो भी यहूदियों के इतिहास में शब्द सह पूरे हुए हैं। 1100 or 11 lakhs people were killed and 97,000 were taken as slaves to Rome. 11 लाख लोग जो हैं वो घात किए गए और 97,000 लोग जो हैं वो बंधुओं के रूप में रोम साम्राज्य में ले जाए गए। Since then they have been one place to another. Their descendants were scattered until 1948. और उनके जो पूर्वज थे वो 1948 तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार मारे मारे फिरते रहे। I wanted to particularly read 53 to 57, Deuteronomy chapter 28, 53 to 27. Read at home, 53 to 57. और मैं चाहूंगा कि आप 53 से लेकर 57 तक विशेष रूप से इन पदों को आप अपने घर में जाकर पढ़ें। It is said that during when they were captured by the enemy nations, due to scarcity of food, they would be forced to eat the flesh of their own babes, their own children. और वहां पर लिखा है कि जब आक्रमणकारियों ने उनको घेर लिया था तो भोजन की ऐसे कमी हो गई कि उन्हें स्वयं अपने बच्चों को मारकर उनके मांस को खाना पड़ा। A soldier, Josephus wrote like this. I read that portion. और जोसेफस नाम के इस एक यहूदी इतिहासकार ने इस प्रकार से लिखा और उस बात को मैंने पढ़ा है। He was a contemporary of Paul and John. और वो जो है वो यूहन्ना और पौलुस के समकालीन था, उन्हीं के समय का। He was not a Christian, he was a Jewish historian. वो एक मसीही विश्वासी नहीं परंतु वो एक यहूदी इतिहासकार था। He said like that, a soldier when patrolling inside the Jerusalem during the siege, during the time of capture. और एक सैनिक जो है वो उस घेराबंदी के समय में वो अंदर में जाके जब वो चीजों को परिस्थितियों को देख रहा है, he smelled out the burning smell of a human flesh. तो उसको इंसान के मांस जो है जलते हुए मांस की गंध आती है। When went inside, he saw a woman cooking her newly born son's flesh. और वो अंदर जब जाता है तो एक यहूदी स्त्री को अपने नवजात शिशु को पकाते हुए वो देखता है। 53 and 57 were literally fulfilled, not only then, even thereafter and before. 53 और 57 जो है वो शब्दशः न सिर्फ यहाँ पर परंतु इसके पहले भी वो शब्दशः पूरे हुए हैं। Read 28:68. 28 के 68 पद को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ लिखा है, और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा। The prophecy in BC 1450. और 1450 में जो भविष्यवाणी पूरी जो भविष्यवाणी यहाँ पर हुई है, It was BC, before Christ. ये यीशु मसीह के पहले 1450 साल पहले AD 70 it occurred, literally occurred, happened. और ये यहाँ पर जो बातें कही गई हैं वो AD 70 या 70 ईस्वी में शब्दशः पूरी हुई हैं। After the siege or after the war in AD 70, 97 slaves were captured and they took them to the Alexandrian market in Egypt. और जब 70 ईस्वी में घेराबंदी के समय में करीब 97,000 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इन लोगों को लेकर एक जो मनुष्य लोगों को बेचने का बाजार रहता वहां पर ले जाया गया था। Slavery market in Alexandria, Egypt.
अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में वहां पर उनको बेचने के लिए ले जाया गया था। None bothered to buy them. और वहां पर किसी ने भी इन लोगों को खरीदने में अपनी रुचि नहीं दिखाई। Then they took them to Rome, Italy. और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया से इन लोगों को रोम ले जाया गया, इटली में ले जाया गया। There they made them to build the Roman Colosseum and Forum. Even today it is there. और रोमन कोलोसियम नाम का जो एक स्थान है वहां पर उसको बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए ये इन यहूदियों को जो बंधुआई में ले जाए गए थे, उनका इस्तेमाल उस निर्माण के लिए किया गया। The hatred towards by the world nations are called anti-Semitism. और पूरे संसार की जातियों का इस जाति के प्रति जो घृणा है वो जो इस जाति के प्रति इनकी जो नफरत है, इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है। God used the Gentile nations to punish them. परमेश्वर ने अन्य जातीय राष्ट्रियों का इस्तेमाल किया ताकि वो यहूदियों को दंड दे सके। Because they went away from the word of God, they went away from the promises of God. In his climax, they crucify the Messiah who came, to them, who was their Messiah. क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से वे लोग बहुत ही दूर चले गए और देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीहा को उन्होंने, अपने मसीहा को उन्होंने स्वयं क्रूस पर लटका कर मार डाला। Do you know what happened during the Second World War period? और आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में क्या हुआ था? 59,000 or 59 lakhs or 6 million, 59 lakhs 500,000 Jews, elderly people, young people, women, children, kids were fried out in the gas chambers as popcorns by Hitler and his army. और हम जानते हैं कि विश्व युद्ध के समय में हिटलर और उसके जो सैनिक थे, उन्होंने करीब 6 लाख यहूदी सैनिकों को, स्त्रियों को, बच्चों को गैस चैम्बर में उन्होंने डालकर उन्होंने उनको मार डाला। In the mid Europe, in Austria, Auschwitz and different other places. मध्य यूरोप के स्थानों में इस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया गया। Not 100, not 200, not 300, not 1,000, 6 million Jews. सैकड़ों और हजारों में नहीं, परंतु करीब 60 लाख लोगों के साथ, यहूदियों के साथ ऐसा किया गया। A new word entered in the English literature since then as the synonym to genocide, Holocaust. और अंग्रेजी साहित्य में एक नया शब्द जो है वो उस घटना के कारण से प्रयोग किया जाने लगा जिसको कि जिनोसाइड या होलोकॉस्ट, मानव हत्याओं का अंबार के रूप में उसको जाना गया है। There is a favorite secular historian, Sir Martin Gilbert, who wrote the book called The Holocaust. I am just telling you, if you read it without tears, shedding tears, without a melancholy heart, you cannot, read out those events happen to the Jewish nation, over there between 1942 during the Second World War. और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यहूदियों के साथ जो बर्ताव किया गया उसके विषय में एक इतिहासकार ने जो उस बहुत सारे यहूदियों के मारे जाने के विषय में जिस बात का उसने वर्णन किया है, यदि हम लोग उसको पढ़ना चाहेंगे मेरे प्रियो, तो बिना आंसुओं के हम उन बातों को नहीं पढ़ पाएंगे। Before frying out them in the gas chambers, Hitler called out and asked the world nations, who needs these Jewish dogs? Anybody to take over them? Nobody wanted. और जब इन लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मारा जा रहा था तो हिटलर जो है वो कहता है कि ये यहूदी कुत्तों को की जरूरत किसको है, और वहां पर कोई भी सामने नहीं आया ये कहने के लिए कि हाँ हमें इनकी जरूरत है। Now I want you to read, in Hindi, 28 Deuteronomy chapter 28, 65 and 66, please. और व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय के 65 और 66 पदों को हम पढ़ेंगे।
और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। This is has been happening throughout this 2000 years when they were living in different nations, but that climaxed in the Holocaust in the Second World War. और 2000 साल तक ये लोग जबकि विभिन्न देशों में रह रहे थे, ये इसी प्रकार के अनुभव में से होकर गुजर रहे थे, परंतु इसकी पराकाष्ठा जो है वो इस समय में वो जिनोसाइड और होलोकास्ट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हमको देखने को Reversal blessings. और ये जो है ये आशीषें जो पलट कर श्राप के रूप में उनके जीवन में आई The Jewish history proved that. और यहूदियों का इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है। But thank God, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, even though Hitler and his army men killed 60 million people, यद्यपि हिटलर और उसकी सेना ने 6 लाख यहूदी लोगों को मार डाला, in 1948, they began their nation, or re-established their nation with 6 million Jews in the Holy Land. और 1948 में 60 लाख यहूदी जो थे वे लोग मिलकर, 6 million Jews were killed, but 6 lakhs, 600,000 Jews, they established their kingdom. परंतु 6 लाख यहूदियों के साथ 1948 में यहूदियों ने फिर से अपने देश के, अपने राष्ट्र के पुनर्स्थापना को आरंभ किया। Today there are 8.5 million. आज हम लोग करीब 85 लाख यहूदियों को हम उस देश में देख सकते हैं। Another about 40%, they are all around the world today. और इसके अलावा और भी जो 40% यहूदी हैं वो पूरे विश्व के अनेक अन्य राष्ट्रों में फैले हुए हैं। But the Lord will regather them by the millennium. परंतु परमेश्वर जो है फिर से इन सारे यहूदियों को अपने उस सहस्त्राब्दी राज्य के लिए एकत्रित करेंगे। But there is a lesson you and me to learn from this history and prophecy. इस इतिहास से और भविष्यवाणियों से आपको और मुझको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख लेने की जरूरत है। Your salvation is eternal. आपका जो उद्धार है वो अनंत है। You became part of the church universal. और आप जो है सार्वभौमिक कलीसिया के एक भाग बन गए हैं। God promised so many spiritual blessings. आपके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी आत्मिक आशीषों का वायदा किया है। But dear brothers and sisters, especially the young people and children, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों, your salvation will not be lost. आपका उद्धार जो है वो नहीं खोएगा। But don't play with the word of God, the doctrines of the word. परंतु परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वचन में दी गई प्रतिज्ञाओं से खिलवाड़ न करें। You may be experiencing lot of reversal blessings in your life. You may not have peace in your life. There will be a lot of struggles in your life. There will be God will through your secure employees and other people. This is my experience. So beware. Don't play with the word of God. Always please God and always try to follow the word of God as it is. May God bless you. और परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ करने के बहुत सारे दुष्परिणाम जो हैं हमारे जीवन में हम अनुभव करने पाए हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो उन दुष्परिणामों को आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में यदि हम अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की शांति को हम लोग अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। ऐसा करने के लिए परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता करे।